Uh, hel- Hello, viewers. This is Tosifur Rahman live on his Facebook page. And today we are going to discuss a very, very sad incident which happened yesterday in Pakistan. A woman who was driving with his two kids from Lahore to Gujranwala, she was raped on a motorway near Lahore. So today I have two panelists with me, our distinguished guest. The first one is Nida Khan. She is a psychologist and she's doing her practice in USA, Michigan State. And second, I have Sharoon Saab with me. He's educationalist and has a political background as well. We will talk कि इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं लाहौर जैसे महफूज सिटी में, उसको हम बहुत महफूज समझते हैं, तो उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होता है, उसका लोकली क्या इम्पैक्ट होता है, और कल से पूरे पाकिस्तान में जहां-जहां भी सोशल मीडिया के ज़रिए और जो डिजिटल मीडिया के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ज़रिए जिस-जिस को भी पता चल रहा है, दे आर फीलिंग वेरी हम बहुत ही दुःख में हैं इस टाइम। और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं, वो बहुत ही इट्स अ टेरिफिक, जो हम कह सकते हैं, आई डोंट हैव द वर्ड्स, इतना पेनफुल इंसिडेंट शायद हिस्ट्री में नहीं देखा कि एक औरत जो मोटरवे से, एक महफूज़ सफ़र हम मोटरवे को समझते हैं, और वो सफ़र कर रही थी अपने बच्चों के साथ एंड उसे रोका गया। उनका पेट्रोल खत्म हो गया, तो रात के 12 बजे के बाद का टाइम था। उन्होंने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन भी किया, मौके पे पुलिस भी नहीं पहुँच सकी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली दो लोगों ने उनका शीशा तोड़ा गाड़ी का, उन्हें निकाला, साथ फसलों में ले गए, वहाँ उनके साथ रेप किया गया उनके बच्चों के सामने, और फिर बहुत देर बाद कहीं पुलिस रेस्क्यू को पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। So I would like to start with Nida Khan. Nida, you have just heard about this incident. First of all, I would like to know, as a woman, what you feel after listening such kind of terrible incident in a main city of Pakistan. It's terrifying. It's really, really terrifying because obviously you don't feel safe and secure. And especially, like you said, in a city like Lahore, that's supposed to be very modern and open. And you would assume that it is safe for the female gender as well as young kids to hear an incident like that. I mean, sadly, you would somewhat expect this type of things to happen in small villages, but the whole idea is we all talk about, as Sharon will be speaking on this as well in a little bit, the whole point of education. And then we say, if you're educated, you won't have these type of issues. But when you look at a city like Lahore, people are educated. I don't know the exact percentage, but it's a high percentage of people that are educated, and yet even in an educated city like that, you have an incident happening, which really just stems this inherent fear for all women that are in Pakistan currently, especially in Lahore, especially in that area, of all ages. Here's another thing that people don't sometimes understand, or don't think. They think that rape only happens to a certain age, when a woman is a certain age, and that is not true. It can happen to, as you were, as we were talking about, there was another incident of a younger child. So when it comes to rape, it could happen to any age, to a female of any age, to a child, to even an elderly lady in her 60s or 70s. So for a female, that's the most scariest thing in the world, for her privacy to be stolen like that and be violated, and her body to be violated like that, without her consent and her permission. So it's very terrifying. It is a very terrifying. I was talking to all of my female cousins, and they just mentioned this incident to me as well, and they were saying that they don't let any of their younger girls or even boys, as a matter of fact, to go out to the bazaars alone, because they're so scared of this type of stuff. Yeah, this is really very terrifying. Sharun, what's your general take on it? When we listen such kind of incident, you are sitting away from Pakistan, you are right now in America. When you listen these kind of incident, what you feel personally? Okay, I was been teaching like from past 10 years. I taught more than like 10,000 students in past 10 years. But
there's a big problem, that is education, and education has a little more thing to add, that is discipline. The problem is कि हमारी तालीम में Yeah, एजुकेशन तो बहुत है. लाहौर इज नोन फॉर लाइक द सिटी ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स. यू नो इतने yeah, स्कूल्स हैं, इतने कॉलेजेस हैं कि आपको हर गली हर नुक्कड़ पे आपको एक कॉलेज मिलेगा. बट उस yeah, कॉलेज में तालीम तो है, तालीम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तरबियत का एलिमेंट जो है वो खत्म हो गया. yeah. ये अब ओवरऑल एजुकेशन का इशू बन गया है कि जब तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं होते रहेंगे. आई वाज वर्किंग विद वन नॉर्वेजियन organization. We were working on life skill based education. That education is particularly based on civic education. The civic education जो मैं आपको साथ बात करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, वो यही Yeah, था कि देखें जी, civic education का हमारी एक रेगुलर एजुकेशन में होना बहुत जरूरी है. हम okay. आज हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो साउथ एशियन इंडियन पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, वो सारे के सारे चाहते हैं कि उनका लड़का लड़की डॉक्टर इंजीनियर बने, आईटी एक्सपर्ट बने. Okay. बट वो ये गोल तो अचीव करने में आई थिंक सो कि वो कह लो कि कामयाब हो रहे हैं. बट एक चीज मिस हो रही है, दैट इज तरबियत. हमारे एक ऐसे ही देसी है. कल्चर में तरबियत का एलिमेंट बहुत जरूरी था. जो टीचर्स थे, जो मौलम थे, जो उस्ताद थे, वो लोग अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ के एक वर्ल्डली एजुकेशन के साथ उन्हें देते थे, बल्कि साथ साथ उन्हें वो तरबियत भी करते थे कि हाउ टू लिव इन द सोसाइटी. यू नो Yeah, सोसाइटी yeah. में एक दूसरे के साथ रहना. अब देखें, ये सिर्फ एक जेंडर का इशू नहीं है, ये सही, सेक्टेरियन इशू भी है, ये एथनिक इशू भी है. यानी हम सही. सेक्टेरियन तौर पे भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एथनिक तौर पे भी बर्दाश्त नहीं करते, तो जेंडर तो फिर एक बड़ा क्लोज, क्योंकि हमने साथ ही रहना है. तो ऐसे. मैं मानता हूं कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत जरूरी है. और हमारे स्पेशली स्कूल्स में, स्पेशली इंटरमीडिएट तक, सिविक एजुकेशन को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकें हाउ टू लिव, हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, एंड किस तरह रहना है आपने सोसाइटी में. ये चीज बताना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. थैंक यू फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं. आमना है, मेरी क्लास फेलो इन दुबई. उनसे भी मेरी आज बात हुई थी. शी वाज इन अ रियल इन अ स्टेट ऑफ सारो के इस तरह के कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं. और भी दोस्त हैं साथ. आप अपने कमेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है और किस तरह हम इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो अब हम यही बात करेंगे कि किस तरह हम इसको रोक सकते हैं. लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाता हूं कि ऐसे इंसिडेंट होने ही नहीं चाहिए. रोकने की तो बाद में बात है, ऐसे होने ही नहीं चाहिए. ओके, कमिंग बैक टू निदा खान. निदा, अगर इफ अ वुमेन वेंट थ्रू सच अ ट्रॉमा, तो what are the, being a psychologist, what are the mental health issues she faced afterwards, after having such a painful, such a sad incident? Right. So when something like this happens, trauma, the interesting thing about trauma is that you really don't know. Sometimes you feel it right then. Obviously right now she is in shock. She's probably in Okay. shock and not really maybe fully realizing the capacity of what the incident occurs. So first, it may take months to even a year for her to fully understand what happened to her. So basically, what I'm saying is that she could be in shock right now, or she may be Okay. one of those people who may act like nothing happened. And then 6 months from now, it may hit her like a ton of bricks, and she might get really overwhelmed and start feeling the symptoms of the trauma then. So, trauma works very differently for each person. You either have a reaction instantaneously, or the reaction can take a few months for it to actually come out. So that's one thing about trauma. The other thing is, like Sharon was saying, the how the culture is. So we know how our society looks at women. We already know that. We also know how women get treated, and we also know that how women who have been raped, or women who don't have a certain character, are treated or labeled in our communities. So then she has to worry about how the world, how the country, and then how the world is going to look at her. There's probably some people who are going to be like,
oh, she must have done something, or maybe, you know, there's always negative people like that who would try to blame her for the incident rather than looking at what the incident occurred, that it was a tragedy for her. So I think that's one of the huge thing. I think the biggest thing for her right now is to see that her family is supporting her parents, her husband, you know, brothers, any males in her family, how they are supporting her and how they are treating her is going to be very, very important, especially how her husband treats her. If he ends up rejecting her because of this incident, that is going to be so traumatic for her, not just emotionally, but also, you know, as a female, it is going to be really huge if she gets rejected now after going through that incident by her husband as well. So those are the things we have to look at. Then I don't know if she has daughters. Does she have daughters? I know she has 3 kids. She had a daughter or yes, there was a daughter as well. Okay. So, you know, then looking at how the trauma is going to be for her daughter, you know, when you are raped as a female, it affects you in so many levels. But one of the most important things is that you end up having a lot of issues with your relationship, with your intimate relationship, especially, let's say, her relationship with your husband. You know, the woman will kind of stop trusting men. That is very common. And then also, there's also displacement of anger. Now, we don't know it. We hope the rapists will get caught, but there's a possibility they might not get caught. We don't know. So, you know, then it's like for her, where should she place her anger? Who should she be angry with? The rapists? She may not see the rapist right then, but she may start getting angry at her kids. She may start getting angry at her husband. She might start getting angry at other people. So psychologically, that happens a lot. You start displacing your anger onto other people if you're not able to, you know, vent it out to the right person. So there's so many layers to it. I mean, we can go on and on and on about it, but I think the most important thing is for her to receive as much support as she can from her immediate family. I know that as a society, and you know, there's a lot of NGOs that are going to support her. I know a lot of women's organizations are going to support her, but the most important support is going to be from her immediate family and the men in her family, of how they treat her, and they don't look at her as, you know, that she is, you know what I mean, that, you know, society looks at women differently after such incidents. Yeah, you have, you know, very comprehensively talked about that. Definitely, it's, you know, in a psychological term, it's one of the painful incident which can have a very bad, you know, psychological impact on a person. There is no, you know, the other opinion. And then you also talked about the, you know, the reaction, whether the police will caught that person or not. You know, you are sitting in USA, and you know, over there it is very clear that if there are very rare chances of such kind of incident, very rare, but there is not a single chance where the police, you know, we can doubt the ability of the police, that police will not caught those persons. Right. Okay, हमारे यहाँ there is a possibility, but and there is also people are commenting that the statement of DIG right now, the police officer, he said that the woman should not travel alone. The woman should take care of her fuel while traveling. Right. Okay, you know, police should not, you know, say these kind of statements right now. उन्हें ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए. उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना. वो अगर ये कहेंगे कि पुलिस को अपना ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, मे बी शी वाज इन एन इमरजेंसी, क्या सिचुएशन थी. एंड रोड्स इन लाहौर 2 o'clock इज कंसिडर्ड सेफ एंड नॉर्मल. ओके, हमारी फैमिलीज में भी पीपल, हम रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इन लाहौर इट्स नॉर्मल. अगर कोई रिमोट एरिया होता तो हो सकता है हम समझते कि बहुत ही दूर का एरिया था. तो शरून साहब, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा बड़ा, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, ये मैंने बोला कि लाहौर में ये इंसिडेंट हुआ है, पिछले वीक में कराची में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, पेशावर में ट्रांसजेंडर को मर्डर कर दिया गया है, और इससे पहले आपको पता है इस तरह के बहुत से केस रिपोर्ट होते हैं. और पाकिस्तान में और भी कुछ, जैसे कोई ट्रैफिक हादसा हो गया, जैसे कोई ट्रेन का सिग्नल बंद नहीं था तो ट्रेन का हादसा हो गया. क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सेट करें कि फॉर इंस्टेंस ये मेरा अगर मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे तो मोबाइल कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल. मेरे घर की सफाई नहीं हुई तो ये रिस्पॉन्सिबल है. मेरे घर की लाइट नहीं आई तो ये रिस्पॉन्सिबल है.
जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, इनको अकाउंटेबल क्यों नहीं हम करते? ठीक है, सारे कहते हैं जी हम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे, और मोटरवे पुलिस तो ये कह रही है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं था, ये 1 किलोमीटर दूर था हमसे। हाँ, हैरानगी की बात। हाँ, ये देखें, ये जो कराची में ईसा नगरी वाला वाकया है, जिधर वो 5 साल बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई, फिर मर्डर और उसे बोरी बंद लाश में, क्योंकि ये कराची का स्टाइल है, यू नो। जी जी। अब इसमें जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, अकाउंटेबल देखें, अगर मैं हूं तो मैं तो कहूं कि उस एरिया का जो लॉ इन्फोर्सिंग जो पर्सन है, जो से हम एसएचओ बोलते हैं, जो गोरा बना के चला गया है, मेरा तो ख्याल है कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी ज्यूरिसडिक्शन में, सही, जिधर जिधर वो है। अब ये जो टैक्टिक्स हैं पुलिस के जी ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं थी, ये मेरे एरिया से बाहर चला गया, ये तो आपको पता है कि ये सारे लेम टैक्टिक्स हैं, यू नो, ये सारे लेम टैक्टिक्स हैं। अब इसके लिए जो स्पेशल लॉ मेकिंग की जरूरत है, लॉ मेकिंग देखें, हमारे मुल्क में ऑलरेडी सारे कानून अवेलेबल हैं, वो शरई तौर पे भी हों और वो माशरती तौर पे भी हों, या वो आप कह लें कि कानूनी तौर पे हों, ठीक है, तीनों टीयर्स के ऊपर आपके पास लॉज अवेलेबल हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की है, प्रॉब्लम यहाँ जिम्मेदारी लेने की है, यू नो। आपने ट्रेन इंसिडेंट्स की बात की, पूरी दुनिया में मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कोरिया का। कोरिया में एक इंसिडेंट हुआ कि एक शिप जो है वो डूब गया, तो वहां का जो कंसर्न मिनिस्टर था उसने आप कह लें कि उसी वक्त रिजाइन कर दिया, ठीक है। दुनिया में एविएशन के जितने इश्यूज होते हैं, अगर किसी एरिया में यानी किसी के मिनिस्ट्री में कुछ हो, तो वो ऑल्दो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जी उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, वो रिजाइन कर देता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम जो है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम बीइंग एज ए, देखें आप तौसीफ साहब, आपको भी पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, ठीक है, जब से मैं आपको जानता हूँ। आपने मुझसे ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया, क्योंकि आप अपना पर्सनली भी पढ़ा रहे हैं लोगों को, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आप यानी पढ़ा रहे हैं। तो अब आपने देखा है कि यहाँ हम एज ए, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं एज ए स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था कि मैं एज ए स्टूडेंट मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं एज ए सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी व्हाट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ये इसीलिए मैंने इन द बिगनिंग मैंने बात की, द प्रॉब्लम लाइज इन योर एजुकेशन सिस्टम। और वो एजुकेशन इतना मटेरियलिस्टिक है जो सिर्फ आपको 2 + 2 = 4 बता रहा है, बट सोसाइटी इज डिफरेंट। सोसाइटी में भी 2 + 2 = 6 हो, 2 हो, 1 हो, यू नो। तो सोसाइटी जो है, आपको पता है कि बिहेवियरल साइंसेज में ये चेंज करता है। हमें अपनी सोसाइटी को इस तरह का, अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह का बनाना है जो हमारी सोसाइटी के साथ रिलेट करे। सिर्फ इट्स डज नॉट मीन कि हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी इंजीनियर बना दें, लेकिन जो वो सोसाइटी का एक जो एलिमेंट है जिसमें सोसाइटी को ग्रूम करना है, सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से लेके चलना है, जिसमें एक दूसरे को अकोमोडेट करना है, वो जेंडर हो, वो एथनिकल हमारे डिफरेंसेस हो, वो सेक्टेरियन डिफरेंसेस हो, वो रिलीजियस डिफरेंसेस हो, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। जब तक वो कंपैशन नहीं आएगा एक दूसरे को अकोमोडेट करने का, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और मैं अपना पर्सनली जो मुझे फील होता है, इसके बिहाइंड सिर्फ आपकी सोसाइटल ट्रेनिंग है। सोसाइटल ट्रेनिंग की कमी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हम अपने क्लासरूम में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम अपने क्लासरूम में किसी लड़के या लड़की को एथिकली ट्रिम नहीं कर सकते कि उसे सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं बता सकते। वो कहेगा डोंट मैस विद मी, यू नो, दैट्स माय पर्सनल अफेयर। ऐसे ही तो सर, मैं भी जब देखता हूँ हमारे पाकिस्तान में मस्जिदें बड़ी होती हैं, चर्च बड़े होते हैं, सारे लोग इबादत कर रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं ये मैसेज तो दिया ही जाता है कि हमें जो है एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखना है, और तमाम रिलीजन दुनिया के पीस का मैसेज ही देते हैं। लेकिन फिर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कहीं ना कहीं हम बात तो करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा सोसाइटी पे। 70 साल हो गए हमें एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, उससे भी ज्यादा,
लेकिन हम कोई ऐसी जनरेशन नहीं पैदा कर सके जिससे हमें पता चले कि ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, रूल ऑफ लॉ का ख्याल रखते हैं। वी लव, मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। वी लव कि हमने रूल, इशारा तोड़ने पे मैं फख्र करता हूँ, ठीक है, हमारी कंट्री में, बिकॉज आई एम ट्रेन्ड लाइक दिस। हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे यहाँ इसी तरह की बातें, मतलब कि अगर आपने कोई, और हम लोग भी और हमारे साथ भी लोग भी, मुझे ऐसा लगता है द वुमेन ओवर हियर आर नॉट सेफ, ठीक है। वी आर टिपिकली टॉकिंग अबाउट द वुमेन। कल भी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि अ गर्ल वाज साइकिलिंग ऑन इस्लामाबाद रोड्स, तो वो साइकिलिंग कर रही थी, कोई खतून, तो पीछे से आके उसको किसी ने हरास करने की कोशिश की है। और ये लाखों इंसिडेंट ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है। हमारे यहाँ आपको पता है द कल्चर ऑफ आवर कंट्री इज कि हमने रिपोर्ट नहीं करना। मेरी माँ बहन है तो ऐसा इंसिडेंट होगा, छुपा लो, ठीक है। अगर ये एफआईआर हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी, हम चौधरी हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ठीक है। तो ये एक इशू है हमारे यहाँ, जिसको हमें देखना है कि सबसे पहले आवाज उठानी है। और सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पे हम बात कर पा रहे हैं इस टाइम। और अगर ये केस सॉल्व होता है, अगर मुजरिम पकड़े जाते हैं, तो मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जो है वो हाथ होगा इसमें। तो निदा, कमिंग बैक टू यू, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सच अ सिचुएशन, इफ अ वुमन वेंट थ्रू सच अ सिचुएशन, what should she do to overcome it first? And secondly, all the women who are watching or listening these kind of news, what kind of effects they are facing and how they can come out of it, because after every sad incident there is a need to come out of such a trauma. So what are the ways for that particular woman, and then for overall for the society? Yeah, I think for her, I think the most important thing I think would be obviously the support from her family, also getting psychological help. You know, if she can go to a therapist and talk to someone, I think that would be really really good, because this was a very very scary incident, and it was a very intimate incident. So she needs to talk about it. And like you just said, that in our culture, families don't want to talk about it because they feel like, like, is that they have to hide it. And I think that it comes from collectively the idea that a man's izzat is his izzat, but a female's izzat becomes the whole family's izzat, not just her own. And because of that, she's not allowed to really make a lot of decisions on her own or even take any type of stances. So I think it's very important to understand that, dissect it, and then allow her to, to be able to talk about it. Because when these type of incidents happen, I don't know what her family is or family background is. They might try to just hush it up and not really talk about it. But now it's already become viral. It's already in the news. They might have a difficult time of hiding it. But I think the most important thing is trying to get her help, trying to get her to talk to a therapist or a psychiatrist in Pakistan, to take care of her mental needs. Also having someone to also talk to the children. It's very important. When a child goes through something like that, it's very traumatic. They will not feel safe with any type of man in the future. Especially for the girl. Tomorrow she's going to get older. She has to get married. She has to have her own family. So like I said, the trauma impact could happen right now, or it could even happen 10 years from now if they don't deal with it. So it's very important to deal with it. And the only way you can deal with it is by actually talking about it. And you have to talk about it to a person who's not going to judge you, and who's not going to, pass comments that are hurtful. So that's why it's very important for her to go to a trained psychologist or a psychiatrist in Pakistan and talk to them about it. I'm sorry, what was your second question? What the other women who are witnessing this incident through media, what are the impact on them, and how they can feel safe? Because the system has to go on, because a lot of women over here, they drive. Should they stop driving, or how they can overcome this problem? Because I was talking to a woman just before this transmission, and she was feeling unsafe. She said that she was traveling from Islamabad yesterday with her girl.
So even maybe there is a possibility that men don't allow women to go outside. So in such a situation, what kind of remedy for these people who are listening these news? Right. So over here in America, what we usually do is, generally it's very safe. So I can go out at 2 or 3 or whatever. If I go to my family's house and leave that late at night and come home, it's usually very safe. But that doesn't mean that we don't have these incidents at all. So I think as a female, the most important thing is to be smart. Definitely do not stop traveling or stop living your life just because of this incident, because that will only solidify the fact that our society is not safe and that we're not Yeah. holding men accountable. The whole idea, the whole push after this incident should be that we need to hold men accountable in Pakistan for their actions, and once we start, and once collectively, if the other men who are not the perpetrators start standing next to the women and holding these type of men accountable, only then other women will start feeling safe. So I would say to the females, please do continue living your lives, going to colleges, schools, whatever, but be smart. Be smart. Don't go to a road that is not very traveled or very dark all by yourself. Make sure you have a buddy system. Always travel with another friend or a brother or whoever. Even if you're going alone, be smart, like letting someone know you're leaving this place, and then when you get to whatever your destination is, calling your family, letting them know I've reached that destination. The whole idea of women trying to just being so independent that they can just get up and go anywhere without letting anyone, I think that can be very foolish at times. It's important to let people know where Thank, you are and where you're thank, going, just for your own safety. जी, अच्छा, thank you very अब much. मैं तौसीफ साहब इसमें एक Sharun बात sir, मैं इसमें एक please. बात ऐड करना चाहूंगा जल्दी से. अब द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, we do not have such type of psychological education system, हमारे यहाँ Yeah, वो थेरेपिस्ट जो हैं एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है. देयर इज अ yeah, टैबू. हमारे यहाँ एक टैबू है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, तो उसमें सोसाइटी yes. भी रेकमेंड नहीं करती, और एक पर्सन खुद भी सेफ फील नहीं करता कि वो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाए. तो एक और Hmm. इसमें बात आप ऐड कर लें कि हमारे मुल्क को एक बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इधर इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें और बकायदा रेगुलेट करें. दैट्स द प्रॉब्लम. हमारे यहाँ थेरेपी का कोई रेगुलेट सिस्टम नहीं है. ये आप जानते हैं. तो ऐसे मैं ही चाह रहा हूँ ऐसे. कि ये निदा खान की जो सजेशन है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अनटिल और अनलेस हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे कोई इस पे लॉ मेकिंग की जाए और उसे फिर इस इंस्टीट्यूशन को, थेरेपी के, साइकोलॉजिकल थेरेपी के इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट किया जाए ताकि लोग सेफ फील करें आने के लिए. और ये जो एक टैबू है, इस टैबू को खत्म किया जाए थ्रू एजुकेशन एंड मोटिवेशन. बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है, इसकी बहुत शिद्दत से जरूरत है कि स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूट हो, जब ऐसे वाकयात हों तो वहां पे उनको बकायदा रखा जाए, ट्रीट किया जाए. और क्योंकि हेलो, देयर वाज सम ट्रबल. अच्छा शुरू से मैं एक बात सोच रहा था जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं कि यार, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप सोचते नहीं है कि इस तरह के, देखिए कोई भी पावर पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान में 126 दिन का भी धरना होता है, ठीक है? इस तरह के इंसिडेंट पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? हमें निकलना नहीं चाहिए रोड के ऊपर? देखें, रोड के ऊपर निकलने के लिए हमारे यहाँ किस इशू पे नहीं निकलना चाहिए. देखें, सोसाइटी का हर एस्पेक्ट जो है निगलेक्टेड है. ये सिर्फ एक इशू नहीं है. मैं इसीलिए जब मैंने स्टार्ट ही इस बात से किया था कि भाई प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है. आप अगर एजुकेशन को देखें तो उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. लॉ को देखें, लॉ एग्जिस्ट करता है,
उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी लिखी हुई है, इट्स रिटन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इन योर पाकिस्तान पीनल कोड में लिखा हुआ है सारा कुछ, एवरीथिंग इज रिटन, लेकिन द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। अकाउंटेबिलिटी की भी तो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। Yes, and then the most important thing जो अभी मुझे ये एक्सपर्ट ओपिनियन से सामने आया, जो निदा खान की एक्सपर्ट ओपिनियन थी कि थेरेपी का जो इंस्टीट्यूशन है, मैंने अभी अभी ये मेरे ज़हन में आया कि भाई इसके लिए कुछ करें। हमारे मुल्क में लोग साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? जी, वो ऐसा प्रैक्टिस ही तो ऐसा कहीं नहीं ही। कर रहे, वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, और प्रैक्टिस के लिए उनके पास पेशेंस ही नहीं है। और हालांकि और पूरा पाकिस्तान ही पेशेंट है। हाँ, पूरा पाकिस्तान एवरीवन एवरीवन हर नीड्स। बंदे को जरूरत है थेरेपी की। हम इस थेरेपी के मैं इसीलिए वर्ड इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा हूँ, कोट एंड हाँ, कोट। ये मैं एक इंस्टीट्यूशन है पूरा। ऐसे ही अगर आप ऐसे ही। देखें, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसे बनाना और इसे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा पूरा पाकिस्तान जो है वो देखें कि लोग यहाँ, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, हर स्कूल में एक काउंसलर होता है। हमारे स्कूल में सही सही। काउंसलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ नहीं नहीं है। है। इधर हर बच्चे की नीड के मुताबिक वो काउंसलर जो है उसे गाइड करता है, क्योंकि हर बंदे की साइकोलॉजिकल नीड है, उसे बोलना होता है। हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उनके साथ अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं कर सकते। अगर लाइफ स्किल बेस्ड जी, एजुकेशन हो या और इस तरह की आप कह लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हो, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, अपने ऐसा ही पेरेंट्स के है। साथ। हमारे यहाँ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है एक टैबू है, और समझा जाता है कि शायद कोई पागल हो गया है, शायद आज के बाद ये नॉर्मल ही नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, हालांकि देर आर सम माइनर इश्यूज एज वेल, कुछ माइनर इश्यूज हैं जो शायद एक मीटिंग से ही ओवरकम हो जाते हों, या जस्ट एक विजिट से ही ठीक हो जाते हों। ठीक है, बट ओवर हेयर मुझे तो कोई साइकोलॉजिस्ट मुझे पता ही नहीं लाहौर में कहाँ बैठता है, आई डोंट नो। और जो फिजिशियन है वो आपको बड़ा बड़ा पड़ा है लाहौर, और जाली भी और असली भी और नकली भी सारे ही। लेकिन साइकोलॉजिस्ट आपको मोमबत्ती लेके ढूंढना पड़ता है लाहौर के। हाँ, और What's दूसरा your take देखें, on Nida? What's your take on it? Why people are reluctant? Why people feel taboo to go visit a psychologist over here? It's actually a huge issue in the Pakistani, South Asian, Pakistani, Indian communities, even in America, as well back in Pakistan and India. So right now here in Pakistan, in America, Michigan, I have a very tiny practice, and I serve Indians, Pakistanis, Bangladeshis, and I will tell you, they even in America have such a hard time because our culture. The whole idea is that our culture does not want people to know. The whole concept is कि लोग क्या कहेंगे. That is so huge about everything. If you don't have money, लोग क्या कहेंगे. If you, बेटी की शादी नहीं हो रही तो लोग क्या कहेंगे, या किससे शादी हो रही है उस पे लोग क्या कहेंगे, या लड़की को उन्होंने बाहर देख लिया उस पे लोग क्या कहेंगे, या लड़के को ये करते देख लिया. This whole idea of लोग क्या कहेंगे is so huge, and we literally as kids our lives revolve around that, because we are constantly told, even though I mostly lived outside of Pakistan, I heard that from my parents all the time. It was such a pressure that what will people say all the time, that because of that people are so scared to actually admit when they're having financial problems, admit when they're having psychological problems. So even if you end up opening a clinic, I do think that people will go, they'll go undercover. People won't know about it. They won't talk about it. I think it will be very successful, especially if they're able to provide telehealth. Especially because of Corona, right now you're doing telehealth sessions. So if a clinic is able to do sessions over the phone, so people can do it in the privacy of their home, no one can see them going in and out of a psychologist's office, I think a lot of Pakistanis will contact that resource. Okay. There is a suggestion for you that in future you can also start having some online clinic for Pakistani patients. Actually, that's a good idea. I could do that. Actually, that is a really good idea. Because we really need that.
but the Yeah. second problem is nobody can pay as much in Pakistan. Yeah. Yeah, but you know what we do over here is that, it really depends on your income. So that's one of the really good systems we have in America. You use insurances because our medical insurances also pay for this, because Yeah. over here the country feels that it's an important thing. Because the thing is, if someone breaks their hand and wears a cast, everyone's like, oh, very sorry, aapka bazu toot gaya. Lekin when someone's suffering in the brain, someone's suffering in the head, no one asks about it. And if you share that with someone, people will automatically label you as pagal. And depression is something that everyone goes through. I've gone through, you've gone through, Sharoon probably has had. But what it means is that you had a day where you felt really sad, you felt really upset, you didn't feel like doing anything, maybe you cried, and then after 2 or 3 days you were okay, and then you bounced back and you were able to live your normal day-to-day life. That's what depression is. Everyone goes through episodes. When it really becomes serious is if you stay in that state for days to months. That's when it becomes an issue. Okay, Nida, what I got from your discussion, Sharoon साहब एक नया point of view मेरे ज़हन में आया. In our country, जो normal चीजें हैं, they are considered abnormal, और जो abnormal चीजें हैं, they are considered normal. क्या ख्याल है? नहीं, वो तो है, लेकिन अब मैं पब्लिकली यू आर गोइंग लाइव, अदरवाइज मैंने उसकी एक एग्जैक्ट एग्जांपल आपको दे देनी थी. सही. एनी हाउ, प्रॉब्लम ये है कि एबनॉर्मेलिटी हमारे, ये देखिए ना, बड़ी एक रिलेटिव चीज है एबनॉर्मेलिटी. अगर आप देखिए, अगर आप एबनॉर्मल यहाँ हमारे सोसाइटी में अगर कोई चीज एबनॉर्मल है, मे बी वो दूसरी सोसाइटी में एबनॉर्मल ना हो. अच्छा, इस पे भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे कि हमारा नॉर्मल, बड़ी एक हमारा यानी नॉर्मल क्या चीज है और दूसरे का अब नॉर्मल क्या चीज है, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा एक रिलेटिव सा कह लो कि इशू है. अब दूसरी तरफ अगर देखें कि पाकिस्तान का जो मेजर, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स अ मेजर इशू, कि जब तक आप साइकोलॉजिकली अपने बच्चे को तैयार नहीं करेंगे कि सोसाइटी में किस तरह रहना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बड़ा एक देसी स्टाइल है, वही नॉर्म्स हैं जो उनके फोर फादर्स ने उन्हें बताई. अब जिस तरह सोसाइटी चेंज हुई, उसी तरह नॉर्म्स भी चेंज होनी चाहिए. पहले गर्ल्स, पहले को एवोल्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है. पहले को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो इतना कॉमन नहीं था. अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें अडॉप्टेबिलिटी आ रही है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को. अब लेकिन उसके साथ साथ अगर को एजुकेशन हो रही है तो उस जेंडर के साथ इंटरेक्ट किस तरह करना है ये भी बताना बहुत जरूरी है. सिर्फ एक क्लास में लड़के या लड़की को बिठा के एक कियोस्क डेवलप नहीं करना, उसके साथ उसे इंटरेक्ट करने, उसके इंटरेक्शन डेवलप करने के भी कुछ नॉर्म्स, कुछ आदाब हैं. हम जो उर्दू में बोलते हैं, कुछ आदाब होते हैं किसी से बात करने के, तो वो आदाब को सिखाना भी बहुत जरूरी है. अदरवाइज ये एक कियास है, अदरवाइज ये एक फ्रस्ट्रेशन है, अदरवाइज आप एक अगर आप किसी को इस तरह करेंगे तो आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, एक न्यूक्लियर वेपन जिस पे बैठे हैं, जिसने कभी भी एक्सप्लोड कर देना. और वो एक्सप्लोजन जो है, इस तरह के इंसिडेंट्स के साथ हमें, मेरे लिए तो ये एक एक्सप्लोजन है, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है जो ये मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ, ये जो उधर कराची में हुआ, जो पेशावर में हुआ, जो एवरी सेकेंड में हमारी जिंदगियों में हम ये वाकयात सुन रहे हैं, ये एक एक्सप्लोजन है. वो एक्सप्लोजन इसीलिए हो रहा है कि हम एक दूसरे के साथ, हमें प्रॉपर इंटरेक्शन करना आता ही नहीं. ऐसे. अच्छा जी, इट्स बीन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वी आर हियर, तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं. आई वुड लाइक टू कंक्लूड के आज जो डिस्कशन हुई उसमें पहले हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा कि पाकिस्तान के अंदर इस इंसिडेंट के बाद देयर इज अ नीड, उस औरत को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है फ्रॉम हर फैमिली और फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल. She should visit some psychologist, और शरून साहब ने ऐड किया कि state should make such arrangement for that. ये भी बहुत जरूरी है. Then हमने डिस्कस किया एजुकेशनल पहलू को कि हमारे यहाँ एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन वो जो उसमें अदब का पहलू है, ठीक है, एथिक्स का पहलू है, लिहाज का पहलू है, मैनर्स का पहलू है, वो बिल्कुल नहीं है. एजुकेशन हम समझते हैं ये सवाल याद करके 10 में से 9.5 नंबर लेने को, और पाकिस्तान में 9th क्लास में लोग जो हैं वो 505 में से 504 नंबर भी ले लेते हैं. ठीक है, आउट ऑफ 505 दे गेट 504 मार्क्स, ऐसा भी होता है. लेकिन एथिकल एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है.
रिलीजियस एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी जो शायद एथिक्स की तालीम जो है अगर दी भी जाती है तो शायद लोग उसको सुनते नहीं है। हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अपने माइंड्स को, अपने बच्चों को, बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ ओवरऑल जर्नलिस्ट, शरून साहब, हमें देखना है कि किस तरह हम ये बात करेंगे तो जो भी लोग सुनेंगे डेफिनेटली उन पे असर होगा कि किस तरह हमने एथिकल वैल्यूज को बढ़ाना है। किसी भी सोसाइटी में अगर एथिकल वैल्यूज नहीं है तो वो तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही है जी? जी जी तो जी देयर इज अ डायर नीड टू हैव एथिकल एजुकेशन, और उसको मैं तो समझता हूँ उसकी कोई वर्कशॉप होनी चाहिए उसका। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स के कोई प्रैक्टिकल होते हैं ना साइंस के, ऐसे कोई एथिक्स की कोई वर्कशॉप प्रैक्टिकल्स होने चाहिए जिनके मार्क्स हों, ठीक है। क्लास में बच्चों के बिहेवियर के मार्क्स होने चाहिए, और ये डराना नहीं चाहिए। मतलब मुझे कहीं ये लगता है, निदा शायद इस पे वाइंड अप पे कमेंट कर दें कि शायद डर से लोग ना सीखें, एजुकेशन के जरिए या किसी और तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है ताकि वो प्रॉपर सीखें। और ये जो मेंटेलिटी है कि औरत है तो औरत कोई इंफीरियर है, औरत है तो उसको रेप किया जा सकता है, औरत अकेली है तो ये किया जा सकता है, ये मेरे ख्याल फियर से शायद खत्म ना हो। ये प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन की बात की शरून साहब ने, उसी से शायद ये बेहतर हो। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं दोनों के पास, आप वाइंड अप करें प्लीज। निदा फर्स्ट। You know, what you said was absolutely right. It has to be, not just a fear or religious training, but it has to come from the inside. Over here what we teach is that you have to be a good person. So everyone's always trying to be a good person and a kind person. So when a society's goal is to focus on that, and then they will hold other people accountable if they're not a good person to each other, it's school, in offices, then that is where people learn. They learn because they know other people are watching and they're holding them responsible. And the other thing is, you are absolutely right, is that you cannot look at women as inferior. And that's where also I want to tie in the whole trans population also comes in, where the trans population gets treated really badly in Pakistan as well. As you were talking about, there was an incident because you don't look at them as human beings. So when you don't look at them as humans, you don't think that they have needs, they have feelings, or they have any rights. And that's the most important thing. At the end, I would just say, like what Sharoon said, education and also the environment. It starts from the family unit, it starts from the parents, and mothers need to hold their sons accountable. Mothers need to teach their sons how to treat women. Not just fathers also, but also mothers need to hold their sons accountable when they are being rude or disrespectful to other females. And that's how society will change. ओके, मैं सिर्फ एक वर्ड के साथ यानी एक सेंटेंस के साथ कंक्लूड करूंगा, लव दाय नेबर। कि अपने नेबर, इट्स नेबर डज नॉट मीन के द पर्सन लिविंग टू योर नेक्स्ट डोर, एवरी पर्सन यू मेट, उसे अपनी तरह डील करो। अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई दोस्त है, कोई व्हाटएवर, जिससे भी आप मिलते हो उसे अपनी तरह ट्रीट करो जैसा कि आप अपने लिए कुछ चीज पसंद करते हो। तो इसके साथ ही मैं कंक्लूड करूंगा, लव दाय नेबर। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो जो हल है मेरे ख्याल में आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया निदा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। शरून साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय 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 बाय।